Assalamualaikum. Welcome back to my channel. This is Saradaz Educational Hub. As you all know, today we are going to complete our first chapter of chemistry as soon as possible. Today I'm going to upload lecture 2, lecture 3 and the exercise video of chemistry to complete our first chapter as soon as possible. So let's get to our first topic, which is branches of chemistry of today's class. As we know that chemistry is serving humanity everywhere in the environment. Due to its wide scope, chemistry is divided into following main branches. First of all, we have physical chemistry. Physical chemistry is a branch of chemistry which deals with the relationship between composition and physical properties of matter with the changes in them. ये उन लॉज और प्रिंसिपल्स के कॉम्बिनेशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल और उनके केमिकल रिएक्शन के साथ डील करती है जो कि मैटर की कॉम्पोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ जुड़े होते हैं. और नेक्स्ट वी हैव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Organic chemistry is a branch of chemistry which deals with the hydrocarbons and their derivatives. Organic chemistry is the study of structure, properties, composition, reaction, and preparation of carbon-containing compounds, which include hydrocarbons except oxides, carbonates, bicarbonates, and cyanides. Organic chemistry वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स के साथ डील करती है. वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स की कॉम्पोजिशन, रिएक्शंस और प्रिपरेशंस, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की प्रिपरेशन के साथ डील करती है. उन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स में आ जाते हैं गैसोलीन, प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट्स, डाइज, फूड एडिटिव्स, नेचुरल गैस, मेडिसिन्स, which are all studied in organic chemistry. Then we have inorganic chemistry. It is a branch of chemistry which deals with the study of all elements and their compounds except hydrocarbons. Organic chemistry में हम hydrocarbons के बारे में पढ़ते हैं और उनके derivatives के बारे में पढ़ते हैं. Inorganic chemistry में hydrocarbons को छोड़ के जितने भी elements और compounds हैं उनके बारे में study किया जाता है inorganic chemistry में. ये कंपाउंड जनरली ऑब्टेन होते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से और ये एप्लीकेबल होते हैं सारे कमर्शियल और सारे केमिकल इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर जैसे ग्लास, सीमेंट, सेरामिक्स एंड मेटलर्जी. देन वी हैव बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स द कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर मेटाबॉलिज्म and synthesis in the living body such as carbohydrate, proteins and fats. Biochemistry main living organisms और living beings के ऊपर स्टडी करने को केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कॉम्बिनेशन के साथ मिलके जो हम स्टडी करते हैं लिविंग बींग के ऊपर उसको कहते हैं. देन वी हैव इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. अच्छा नहीं, अभी हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे कि बायोकेमिस्ट्री हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कि किस तरह से लिविंग थिंग्स जो हैं वो अपनी फूड के ज़रिए एनर्जी ऑब्टेन करते हैं. वो हमें बताती है डिसऑर्डर, डेफिशिएंसी ऑफ बायोमॉलिक्यूल, कौन सा डिसऑर्डर है जो कौन सी डिजीज़ कॉज कर रहा है. ये ब्रांच बहुत यूज़फुल है मेडिसिन, एग्रीकल्चर और फूड साइंस की फील्ड्स के अंदर. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. It is a branch of chemistry which deals with the chemical processes involved in the chemical industries for manufacture of synthetic products like fertilizers, glass, cements and medicines is called industrial chemistry. Industrial chemistry mainly chemicals के साथ डील करती है जो किसी भी प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, किसी भी चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उस प्रोडक्ट की सिंथेसाइजिंग के लिए जो यूज़ हो रहे हैं जैसे फर्टिलाइज़र्स हैं, मेडिसिन्स वगैरह हैं, उनके लिए यूज़फुल होती है. After that we have nuclear chemistry. Nuclear chemistry is a branch of chemistry which deals with the radioactivity, nuclear processes and properties. Radioactive elements are widely used in medicines as diagnostic tool and as a mean of treatment, especially for cancer, preservation of food and generation of electric power through nuclear power reactors. Nuclear chemistry. न्यूक्लियर केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है
रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस और उनकी न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ के साथ। ये वो एलिमेंट्स हैं जो वाइडली यूज होते हैं मेडिसिन के अंदर एज अ डायग्नोस्टिक मटेरियल या फिर एज अ मीन ऑफ ट्रीटमेंट, स्पेशली कैंसर पेशेंट्स के लिए, फूड प्रिजर्वेशन के लिए और इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स की जनरेशन के लिए, जो कि न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के ज़रिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। Environmental chemistry. It is a branch of chemistry which deals with the study of interaction of chemical material and their effect on the environment of animals and plants, personal hygiene, pollution, health hazards, and important areas of environmental chemistry. ये ब्रांच केमिकल मटेरियल्स और उनका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है एनवायरनमेंट पे, एनिमल और प्लांट्स के एनवायरनमेंट पे, बेसिकली पर्सनल हाइजीन, पॉल्यूशन या फिर हैज़र्ड्स वगैरह, केमिकल हैज़र्ड्स के ज़रिए क्या इफ़ेक्ट हो रहा है एनवायरनमेंट पे, उसके साथ डील करती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री. Analytical chemistry is a branch of chemistry which deals with separation and analysis of kind, quality, and quantity of various components in given substance. It is used in chromatography, electrophoresis, and spectroscopy. Analytical chemistry जो है वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि एनालिसिस करती है किसी भी कंपोनेंट का, किसी भी गिवन सब्सटेंस के अंदर वेरियस कंपोनेंट्स की क्वांटिटी, क्वालिटी और उनकी क्या काइंड है। फॉर एग्जाम्पल, एक आपके पास मिल्क शेक है, उस आपका सब्सटेंस है मिल्क शेक, उस मिल्क शेक के अंदर क्या कंपोनेंट्स है? मिल्क, शुगर, आइस, वाटर, मैंगो। कोई सा भी मिल्क शेक है तो उसका काइंड होगा, जैसे मैंगो मिल्क शेक है तो मैंगो है, चॉकलेट मिल्क शेक है तो चॉकलेट, सही है। तो अब क्या काइंड्स उसके अंदर? मिल्क है, मैंगो है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स हैं। क्या क्वालिटी है उन थिंग्स की, किस कंपनी का है, क्या क्वांटिटी है, कितनी अमाउंट में डाली गई है। तो ये सारे कंपोनेंट्स की क्वांटिटी, क्वालिटी को एनालिसिस के ज़रिए स्टडी करना एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाता है। ये ब्रांच यूज़ होती है क्रोमेटोग्राफी के अंदर, इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर और स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करें, medicinal chemistry is a branch which deals with synthetic organic chemistry, pharmacology, and various biological specialties. Medicinal chemistry is used in synthesis of chemical bioactive molecules like drugs and pharmaceutical agents. ये वो ब्रांच है जो कि स्पेशलाइज्ड है मेडिसिन्स को सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ज़रिए मेडिसिन्स और बायोलॉजिकल स्पेशलिटीज़ को सिंथेसाइज करने की। ये यूज़ होती है केमिकल, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल एजेंट्स को सिंथेसिस करने के लिए। क्वांटम केमिस्ट्री, the branch of chemistry which deals with the application, mechanics, and experiments of physical models in chemical system. It is also called molecular quantum mechanics. ये वो ब्रांच है जो किसी भी फिजिकल मॉडल, एक केमिकल सिस्टम का फिजिकल मॉडल की एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए उसकी एप्लीकेशन और मैकेनिक्स को डील करती है। क्वांटम केमिस्ट्री का एक और नाम भी है जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिक्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव ग्रीन केमिस्ट्री एज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of processes and designing products which are composed of less hazardous substances. It is known as sustainable chemistry. यानी वो compounds या वो products जो कि लेस hazardous substances के साथ मिलकर बने हैं, उनको डील करने के लिए या उनके प्रोसेस को स्टडी करने के लिए हम ग्रीन केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। जैसे हम घरों के अंदर लगाते हैं, जैसे हमने आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, और घरों के अक्सर आपने देखोगे इंडस्ट्रीज़ एरियाज में, स्कूल्स के अंदर, घरों में आपके ऊपर एक ग्रीन छत सी ग्रीन क्लॉथ की एक पूरा छत सा बना हुआ होता है कि पूरा एक जैसे हमें साया भी मिल रहा होता है। तो वो जो है हमें हैज़र्डियस रेज, रेडियोएक्टिव हैज़र्डियस रेज या फिर आप ये कहें यूवी लाइट से, अल्ट्रावायलेट लाइट से बचाने के लिए होती हैं। These are safer chemical, less hazardous chemicals and safer solvents are the example of chemistry.
Main purpose of this branch is to use waste material efficiently and improve the energy efficiency in chemical industry. उसके बाद हमारे पास हमारा अगला टॉपिक है डेफिनेशंस का. सबसे पहले हमारे पास बेसिक डेफिनेशंस गिवन है मैटर की. मैटर इज ऑल अराउंड अस, द एयर यू ब्रीथ, book you are reading, stuff you touch and see. Matter is simply defined as anything that has mass and occupies space is called matter. आप सबको पता है मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. There is also a fourth state of matter which is known as plasma. There is also a fourth state of matter which is called as plasma. The different states of matter are due to the difference of energy in an increasing order. If we see in figure 1.1, the states of matter from solid to liquid, liquid to gas, gas to plasma is due to the increase in energy level of particles. अगर देखा जाए तो सॉलिड के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, अगर मैं जूम करूँ इसको तो आप देखें इस सॉलिड के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो पूरे कॉम्पैक्ट हुए हुए, आपस के साथ मिले हुए. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लिक्विड है. लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से आपस में श्रेड हो गए. गैसेस के अंदर ये पार्टिकल्स मोर एनर्जेटिक फॉर्म के अंदर आ जाते हैं और ये एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं. और प्लाज्मा के अंदर ये उससे भी ज़्यादा एनर्जी के साथ जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं. उसके बाद हमारे पास नीचे हमारे बुक के पेज नंबर 8 पे डू यू नो गिवन है, जिसके अंदर एक फ्लो चार्ट बना हुआ है. मैटर विच इज़ फिजिकली सेपरेबल. मैटर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सब्सटेंस एंड मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस. The mixture of substance is a variable composition. Substance is a definite composition. जो मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस है वो सब्सटेंस से फिजिकली सेपरेट हो सकता है. अगर मैं बात करूँ कि वी हैव वाटर एंड सॉल्ट, अगर वाटर एंड पेबल स्टोन्स, अगर मैं ये मेरे पास 2 सब्सटेंस है, ये है मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस कहलाएगा. ये मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस जो है वो वेरिएबल कंपोजिशन और ये फिजिकली सेपरेट होकर एक अलग अलग सब्सटेंस की फॉर्म में आ सकते हैं. वाटर को मैं किसी भी सीव के ज़रिए अगर मैं उसको ड्रेन आउट करूँ, फिल्टर करूँ, तो जितनी भी स्टोन है, जितनी भी डर्ट है, वो एक फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी. वो वाटर मेरे पास एक अलग वेरिएबल आ गया, स्टोन्स मेरे पास एक अलग वेरिएबल आ गए. तो ये दोनों अलग अलग हैं. Substance is divided into 2 parts, element and compound. Compound is chemically separable by elements. Mixture is divided into 2 components, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous mixture वो कहलाता है जो कि totally throughout uniform mixture, जैसे totally solvent जो एक solution बना दे, एक proper solution. फॉर एग्जाम्पल शुगर एंड वाटर. अगर आप शुगर को वाटर को शुगर के अंदर आप मिक्स करेंगे, डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे, तो वो पूरा एक डिज़ोल्व हो जाएगा, कोई भी पार्टिकल आपको नज़र नहीं आएगा. हाँ, लेकिन अगर आप सैंड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो सैंड डिज़ोल्व नहीं होगी, वो कहलाता है हेट्रोजेनस मिक्सचर. हाँ, थोड़ी बहुत सैंड जो है वो डिज़ोल्व होकर वाटर का कलर गंदा सा बना देगी, लाइक मिट्टी वाला कलर बना देगी, लेकिन उसको हम हेट्रोजेनस मिक्सचर कहेंगे. उसके बाद हमारे पास है एटम. एटम, you all know matter is made up of smallest particle which is known as atom. Atom has 3 basic units, electron, proton and neutron. अब जो है वो कंपोज्ड होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो कंपोज्ड है इवन स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर, जो कि हमारे पास फिगर 1.2 के अंदर ये जो टेबल बना हुआ है इसके अंदर शोन है, जहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं वो सिचुएटेड होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस. यानी जो एटम है ये सबसे छोटा पार्टिकल है मैटर का, और ये एटम जो है मज़ीद छोटे पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने.
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर, जो ये है, और इलेक्ट्रॉन जो है इन ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है। अब आते हैं हम मॉलिक्यूल्स पे। A molecule is the smallest particle in a chemical element or compound that has the chemical properties of that element or compound. जो मॉलिक्यूल है वो किसी भी केमिकल एलिमेंट या कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन एलिमेंट या कंपाउंड की। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मेड होते हैं एटम्स से, जो कि केमिकल बॉन्ड के ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ये बॉन्ड एक फॉर्म ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड के अंदर होते हैं। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मोनो, डाई और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। मोनोटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की कुछ एग्जांपल्स आपको नीचे गिवन हैं, यानी इस टेबल के अंदर गिवन है। आपकी बुक के पेज नंबर 9 पे ये टेबल बना हुआ है। सबसे पहले हमारे पास है मोनोटॉमिक एलिमेंट्स। मोनोटॉमिक एलिमेंट्स आर मेड फ्रॉम सिंगल एटम और यू कैन से सिंगल एलिमेंट। हीलियम, इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन एटम। आर्गन, क्रिप्टॉन, सीनॉन, रेडॉन, इन सारे एलिमेंट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक इलेक्ट्रॉन होता है। डायटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एक्सेट्रा। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर 3 या 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जैसे ओजोन O3 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, फास्फोरस 4 मॉलिक्यूल्स, सल्फर 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं सल्फर के अंदर। अगर हम आगे चलें तो हमारे पास अगला टॉपिक है सब्सटेंस। एक पीस ऑफ मैटर जो कि एक प्योर फॉर्म के अंदर है उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। हर सब्सटेंस का एक फिक्स कॉम्पोजिशन और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। सारे सब्सटेंस जो हैं वो फिजिकली और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर हम प्योर सब्सटेंस इनकी जो है एग्जांपल लें तो उसके अंदर आ जाता है हमारे पास टिन, सल्फ़र, डायमंड, वाटर, प्योर शुगर, टेबल सॉल्ट और बेकिंग सोडा एक्सेट्रा। ये सारे जो हैं वो एलिमेंट और कंपाउंड्स हैं, बट दे आर नोन एज सब्सटेंस। नीचे हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं, सॉल्ट, डायमंड और सल्फर की। After that we have element. Element is a substance made up of same type of atom having same atomic number and cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical reaction. Element जो है वो एक ऐसा substance है जो कि बना हुआ है एक टाइप के एटम, सेम टाइप के एटम से, जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है और वो मज़ीद सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर डिकम्पोज नहीं हो सकते किसी भी ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन के ज़रिए। अच्छा, जो एलिमेंट्स हैं वो नेचर के अंदर फ्री और कंबाइंड फॉर्म के अंदर होते हैं। किन स्टेट्स में? सॉलिड, लिक्विड और गैस में। यहाँ पे हमारे पास इस वक्त जो है मौजूदा दौर में 118 एलिमेंट्स यानी 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर्ड हो चुके हैं। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सॉलिड है, जैसे कॉपर, गोल्ड, जिंक एक्सेट्रा। बहुत कम एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिक्विड हैं, जैसे मर्करी और ब्रोमीन, और उनसे भी कम ऐसे हैं जो सिर्फ गैसेस हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ जो हैं इन 3 उस पर डिवाइड हुए हैं। मेटल्स क्या होते हैं? वो सॉलिड मटेरियल जो टिपिकली हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, मेलिएबल, फिजिबल एंड डक्टाइल विद गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, एलॉयज सच एज स्टील एक्सेट्रा। यानी वो सॉलिड मटेरियल जो कि हार्ड हैं, शाइनी है, मेलिएबल यानी किसी भी जो है वो शेप जो है वो फॉर्म कर सकते हैं, फिजिबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और एक इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। नॉन मेटल्स वो एलिमेंट
जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल इंक्लूड नहीं करते, एबिलिटी होती है उनके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की, लस्टर और फ्लेक्सिबिलिटी भी। नॉन मेटल की एग्जांपल अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन गिवन है। मेटलॉइड्स, एन एलिमेंट हुज प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड सॉलिड नॉन मेटल सेमीकंडक्टर। मेटलॉइड्स वो होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल की कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे आर्सेनिक, एंटीमोनी और टिन वगैरह एक्सेट्रा। उसके बाद बढ़ते हैं, हमारे पास हमारा अगला टॉपिक है हाउ टू राइट सिम्बल्स। सिम्बल्स क्या होते हैं? सिम्बल्स होती हैं एक एब्रीविएशन वो एब्रीविएशन जो किसी भी एलिमेंट के नाम को रिप्रेजेंट करती हैं। सिंबल जो है बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज, जर्मन या इंग्लिश लैंग्वेज के एलिमेंट्स के लिए बनी होती है। सिंबल यूजुअली 1 या 2 लेटर लॉन्ग होती है, इससे ज़्यादा नहीं होता। हर सिंबल जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, जैसे कार्बन का C, सल्फर का S। अगर सिंबल जो है वो 2 लेटर्स के ऊपर कंपोज करता है तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा और सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल होगा, जैसे हीलियम के लिए HE, सोडियम Na, क्रोमियम Cr, इस तरह से। अगर आप देखें तो हमारे पास पेज नंबर 11 पे 30 एलिमेंट्स के जो हैं वो सिंबल्स गिवन है। ये सिंबल इंग्लिश के अंदर गिवन है, लेकिन ये ड्राइव हुए हैं लैटिन, ग्रीक और जर्मन नेम्स से। अगर हम देखें, मैं यहाँ जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारे पास, अगर आपको पिक्चर इसके अंदर क्लियर नहीं है तो आप लोग जो है वो अपनी बुक के पेज नंबर 11 पे देख सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास एलिमेंट गिवन है इंग्लिश के अंदर हाइड्रोजन। ये लैटिन, इसका ओरिजिन जो है वो ग्रीक है और ग्रीक में भी इसको हाइड्रोजन ही कहते हैं। ये इसकी रूट जीन है, इसका सिंबल है H। देन वी हैव हीलियम। इन इंग्लिश इट इज़ हीलियम, इन ग्रीक इट इज़ हीलियोस और इसका सिंबल है He। लिथियम, इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज लिथोस, Li। बेरिलियम, बेरिलियम इज़ ऑल्सो अ ग्रीक लैंग्वेज के अंदर बेरिलियम को कहते हैं बेरलॉस और इसका सिंबल है Be। बोरॉन, बोरॉन लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है। बोरॉन को लैटिन में कहते हैं बुसाक और इसका जो सिंबल है वो है B। कार्बन को लैटिन में कहते हैं कार्बोन और इसका सिंबल है C। नाइट्रोजन को ग्रीक के अंदर कहते हैं नाइट्रम, नाइट्रम जीन्स और इसका सिंबल है N। ऑक्सीजन को ग्रीक में कहते हैं ऑक्सीजनोम्स और इसका सिंबल है O। फ्लोरीन को इंग्लिश में कहते हैं, फ्लोरीन को लैटिन में कहते हैं फ्लोर और इसका सिंबल है F। नियॉन, ग्रीक लैंग्वेज नियोस, Ne। सोडियम, सोडियम का बच्चे कहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि सोडियम का जो है सबका जो सिंबल है वो सबके नेम के ऊपर है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन का O है, नाइट्रोजन का N है, सोडियम का S क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि जो सिंबल्स होते हैं वो हमेशा जो है उनके ओरिजिनल जो ओरिजिन होता है उससे बनते हैं। अब सोडियम का ओरिजिन है लैटिन। सोडियम लैटिन वर्ड नेट्रियम से बना है। नेट्रियम को इंग्लिश में कहते हैं सोडियम। तो नेट्रियम के अंदर आप देखें हमारा फर्स्ट लेटर है कैपिटल N और सेकंड लेटर है A। यहाँ पे ये रहा A है तो इसलिए उसका सिंबल बना Na। मैग्नीशियम को ग्रीक के अंदर मैग्नीशियम ही कहते हैं और इसका है Mg। एल्युमिनियम को लैटिन में कहते हैं एलुमिन और इसका सिंबल है Al। सिलिकॉन लैटिन सिलिन, Si। फास्फोरस ग्रीक फोरस, ओनली फोरस, फोरस भी नहीं है, फोरस। सल्फर लैटिन में सल्फर को कहते हैं सुलूहर और मैं शायद ठीक प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रही होंगी क्योंकि मैं लैटिन और ग्रीक वर्ड मुझे तो नहीं आती है, ऑब्वियस सी बात है। तो आप लोग अगर चाहें इसकी ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन देखना तो आप गूगल पे ये वर्ड टाइप करें और इसकी प्रोनाउंसिएशन को आप देख सकते हैं। देन वी हैव क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। देयर आर टोटल 30 elements और
आई हो आप लोगों को भी इन 30 एलिमेंट्स की तो सिंबल याद होने चाहिए। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? वो पावर ऑफ एलिमेंट जो कि किसी दूसरे एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर है, उसको कहते हैं वैलेंस। वैलेंसी डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर जो कि आउटरमोस्ट शेल के अंदर होते हैं, जिसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। वो वैलेंसी जो है, अजान हो रही है, हम थोड़ी देर का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद करते हैं। हम कहाँ पर थे? हम थे वैलेंसी के ऊपर कि वैलेंसी क्या कहलाती है। वैलेंसी जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जो कि आउटरमोस्ट शेल के अंदर होते हैं। वो वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन गेन लूज और शेयर। जो वैलेंसी होती है किसी भी नंबर ऑफ किसी भी एटम के एलिमेंट की किसी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, वो जो है वो गेन कर सकती है, लूज़ कर सकती है या शेयर कर सकती है। कुछ एलिमेंट्स की जो हैं विद देयर सिंबल और कॉमन वैलेंसीज जो है वो हमें नीचे गिवन है। अच्छा, हमारी बुक के अंदर एटॉमिक मास नंबर नहीं गिवन था, मैंने यहाँ पे नंबर वाइज जो है सारे एटॉमिक मासेस लिख दिए हैं। आप चाहें तो अपनी बुक के अंदर भी एक ऐसा छोटा सा कॉलम बना के जो है नंबर्स वाइज जो है सबके एटॉमिक मास लिख लें, ताकि आप लोगों को जो है वो कोई भी सम जो हम आगे एक्सरसाइज के अंदर जो है हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसके अंदर आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1 यहाँ पे मैंने 1 के आगे लिखा है 1 का, 2 के आगे 2 का, 3 के आगे 3 का। नंबर 4 बेरिलियम है तो 4 करके आपको दिया हुआ है। इसी तरह आपको सारे मैंने एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, इनके सिंबल, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको याद होने चाहिए। इसके बाद इसी तरह यहाँ पे आयरन 26 to 30, टोटल 30 है, तो मैंने इसी तरह यहाँ पे आप लोगों को जो है वो यहाँ पे 26 के आगे 55.845, कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 58.933, निकल का है 58.698, कॉपर का है 63.546 और जिंक का है 65.380। इसी तरह मैंने आपको सारे एटॉमिक मासेस भी लिखे हुए हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको आज सब कुछ समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। कल हम इंशाल्लाह जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है केमिकल फार्मूला, कंपाउंड्स, मिक्सचर से लेके फार्मूलाज, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एटॉमिक मास तक, और देन उसके बाद हम जो है इंशाल्लाह कल हमारे न्यूमेरिकल्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।